सालेम अहमद साहब दरख्वास्त है चारा शियो दो खबरें होगी। अस्सलाम वालेकुम। मशरानो टोल ता अस्सलाम वालेकुम यो जल्दिया तासो ډېره مهرباني چې زمونږ په یو مختصر دغه باندې تاسو ټول لاله آصف خان باغي دا څه نوی نوم نه دی، ستاسو زوی دی، ستاسو ورور چې کوم تاسو د پاره ځان شهید کړی دی هغه ته څه د لالچ خواهش نه و یا څه د نور څه دپاره نه و، صرف د علاقې خدمت تاسو کتلی دی چې کله که په نیمه شپه یي که د نوت جدید که د نوت قدیم او که د هر علاقې ناپېژندلو په دغه کې هغه تاسو را راغلی دی، که د ټیوبویل مسله وه تاسو له راغلی دی، دغه رنګې دغه که رورو دغه یو میشن دی د آصف خان باغي نه د هغه اقتدار سره علی شو نه څه نور څه هغه ویل چې زمونږ د علاقه کې یو پارکي سکولونه ډسپنسرۍ او دغه رنګې که نور هر څه یې هغه دا خواهش و چې زما د علاقې ماشومان او مشران ټولو ته دا دغه شي، دا یو میشن و مونږ به دا ووایو ټولو چې په خپل میشن کې هغه کامیاب شو، ځان یې سر وبېللو، نن د هغه کوروالا تاسو ته یو ځل بیا ولاړه ده، ستاسو خور ده، زمونږ د ټولو خور ده او دا به انشاءالله کامیابه ووایي. د ووټ په ذریعه دا صفدر خان باغي چې هغه راغلی تاسو ته دا صرف د ووټ دپاره یې راغلی، هر ځل که خدمت یي که د هغې تاسو له بار بار راغلی دی، داسې تاسو ته نوی نه دی، دا یو میشن دی چې هغه مخکې کړی دی علاقې خدمت هم د نودي بچی دی هم تاسو له هر وخت راغلی دی د بار علاقې نه دی، که سبا چې دغه کېږي که په نیمه شپه دغې تاسو دلته په نیمه شپه هم وتلی شئ، د زنانو که مسلې یې په نیمه شپه هم وتلی شئ، اوس که څوک د صدر نه لرې ځي نه راځي او که د لنډۍ د چا مخالفت نه کوو دا نه وایو، خو دا خو کم از کم زمونږ علاقه ده په نیمه شپه هم ورته وتلی شي، هر څوک په خپل پوره دي دا خبره خدمت اصلي خبره ده خدمت ته نور دغه خدمات تاسو ټولو ته پته ده که د پارک دغه زه به یو مختصر غوندې کې ټایم خو هسې لږ دی خو زه یو مختصر غوندې کې دا یو میسج هم دی چې هغه دغه کړی دی خو د مختصر غوندې کې به که د پارک مسله وه که د صدر صاحب ته د هغه مسله وه د پیسو مسله وه که د ټرانسفارمر مسله وه تاسو بچی دی هم د خپل علاقې دی دا نه چې د بار د علاقې دی نو چې په مونږ په هغه باندې ننګو نه کړو نو نور به څوک کوي. تاسو ډېره مهرباني مشران به هم خبرې کوي هر کله یو ځل تاسو ته وایم او مشران ته خاص کر چې موږ یې دومره عزت راکړو او زموږ په مختصره وینا باندې نعمت صاحب صفدر بھائی ملک اشرف صاحب ته به ډېر دا کوم ګلونه ماما دغه رنګې د نور مشران ډېره مهرباني. زبا یو आवाज کوم خو تاسو ما سره لاس انتخابي نشان انتخابي نشان कुर्बानियों का सिला हमको मिलके रहेगा, जो कुछ लिखा नसीब में वो मिलके रहेगा, सोना नहीं चांदी नहीं ना नोट चाहिए, आपसे हमारी गुजारिश है कि हमें आपका वोट चाहिए. कदे नमक की जो खबरों का आगा शख्सियत रावाड़मा चिकम जुड़ली दी आगा माशूम द पारे जुड़ली दी गटोलियो नोती यतीमानानो द पारे जुड़ली दी और नन दस्त महमद स्क्रीन बाने बराजी जनाब मलक अशरफ ऐवान से चागा दो खबरों मुख्तसर एजाज. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम.
मेरे अजीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं बागी के बेटे को देख के रोया नहीं हूँ। मेरे जज्बात उस वक्त ख़त्म हो गए थे जब मैंने शहीद के बेटे को अपने गले से लगाया। मैं इसलिए नहीं वहाँ गया था कि मैं कागजात वापस लूँगा, मैं निशानात के लिए अपनी एप्लीकेशन देने के लिए गया था। जब मैंने शहीद के बेटे को अपने गले से लगाया तो मुझे अपने बागी भाई की तस्वीर मेरी आंखों के सामने है कि अशरफ, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे मुकाबले के लिए आ रहे हो? शर्म करो। उसी वक्त मैंने फैसला किया, अरशद भाई को कहा मैं अभी फैसला अपना वापस लेता हूँ। हालांकि टाइम गुजर चुका था, मैंने जज साहब की मिन्नत की है, जज साहब मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। कहता है टाइम खत्म हो गया अभी। मैं सर, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, मैं बागी शहीद के हक में दस्तबरदार होता हूँ। ये मेरा जाती फैसला था। हालांकि इस फैसले से मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने काफी नाराजगी का इजहार किया मुझसे कि ये तुमने हम क्या किया, हमसे मशवरा भी नहीं किया। मैंने कहा नहीं, शहीद की खातिर ये मैंने फैसले किए, इसका अजर मुझे वो देगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं सब उम्मीदवारों को चैलेंज करता हूँ, अपने इलाके में सबके डब्बे खाली ना निकले तो मेरा नाम बदल देना इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ ये नहीं कि ये इलेक्शन की हद तक है, इंशाअल्लाह ताला खून का आखिरी कतरा उस बागी शहीद के नाम करूंगा मैं। मैं आज ये ऐलान करूंगा कि टोकरी ये कोई नई चीज नहीं है। ये पहले भी आप लोगों भाइयों ने कामयाब किया इसको, और आज भी इंशाअल्लाह हम सब की दुआओं से इनको हम भारी अक्सरियत से फतह दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। داسې یو شخصیت راغواړم چې په نوتې باندې یقینا یو نوم دی او ډېر سماجي شخصیت دی. یقین وکړئ تاسو چې کله تاسو نږدې نه هغه وګورئ نو تاسو به یقینا د هغې د شخصیت نه متاثره شئ. د هغې خدمات چونکې فرسټ ټایم د هغې یو الیکشن و، نایب ناظم حیثیت سره هغه راغو او انشاءالله نعمان تاسو د هغه نوم ګورئ. یو دو خبرې به سره کوي جناب نعمت خان نائب ناظم صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه دلته د دې مشرانو د پرنسپل صاحب، د فرمان ماما، د جمشید لالا، نور مشرانو شکریہ ادا کوم او دوی ته او تاسو ټولو ورونو ته سلام پیش کوم. الیکشن خو موږ مخکې هم کړی دی، هم ته همدا نشان ټوکری مې لو شوی وه او تاسو ورونو موږ ټولو سره ډېر لوی په موږ باندې احسان کړی چې دا ټوکری هم زموږ د ټولو نه ډکه کړې وه. بیا زموږ شهید رور بیوا ته یعنی پښتو کې ورته کونډه وایي او د هغې ماشومانو ته دا ټوکری نشان میلاو شو. نو موږ بیا هم تاسو نه دا امید کوو چې دا ټوکری به تاسو بیا ډکوئ. او موږ په الیکشن کې تاسو سره دا وعده هم کړې وه چې دا ټوکری موږ ته میلاو ده، په دې کې به موږ د نوتې نه ګن لړه کوو. نو الله په فضل د پارک نه موږ ټول ګن بار لړه کوو او پارک به انشاءالله ډېر زر تاسو دپاره جوړېږي د الله په فضل. زه د اشرف رور ډېر شکرګزار یم چې ده کې دا جذبات د شهید رور دپاره راوچت شو او دی ورته کېناستو. خو زه د نور ورونو ته هم خواست کوم چې تاسو به راپاڅئ او د شهید رور د کونډې ښځې ته د دې په حق کې کښېنئ. نو خدای به په تاسو ډېر لوی احسان کوي.
ولی چې شهید دینه زمکه در رسیدونه مخکې الله پاک ورته په جنت کې درجه او خپلې نو زه تاسو نه امید ساتم چې مخکې تاسو موږ دا ووټ راکړو دا زموږ ورندار دا زموږ خور دا زموږ مور دا تاسو ټول نو دې مور دا ولی چې تاسو هغه مشوري ورکړې و ناظم لا هغه په دې جدوجہد کې او تاسو دې پارک د پاره چاغتلو ملک صاحب له یاره راشن تر می خیخ وکړو زله پارک جوړو مونږ دې کې شهید شو نو تاسو لپاره شهید شو مونږ لپاره شهید شو نو زه خواص کوم چې څنګه مخکې تاسو په موږ احسان کړو نو دې ځل بیا تاسو را پاسئ او دې زنانه لا خپل خور لا خپل مور لا دا ووټ ولا ورکړي او دا کامیاب کړي السلام اورې دي خبرې خو ډېرې دي اړم غواړي چې ډېرې خبرې تاسو سره وکړو هغه حقیقت نه تاسو خبر کو چې یو شخص یو سړی راپاسي یو ځوان راپاسي چې د هغه هېڅ حیثیت نه هغه سره هېڅ سرکاري عہده نه او ستاسو د نوتې دپاره هغه ډګري کالج منظورۍ نو دا یقینا یو داسې ځوان کولی شي بهرحال خبرې هماغسې لکه څنګه تاسو ته مو وویل ډېرې دي خو خپلې خبرې به مختصر کومه دې خبرو سره चेहरे को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा चेहरे को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा मंजिल को चीर दे वो नजर दे के जाऊंगा यारो इस जमाने का ऐसा संतराश हूँ पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा जमा पर ख्याल तो तारीफ मोहताज न दे जनाब सफदर खान बागी जिंदा है 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो तो इज़्ज़ो मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा बियादिक खैर। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, ख़ास करके नोतिया जदीद की इस गयूर अवाम का और दाद शेर का और इन नौजवानों का और ख़ास कर इन फूल जैसे बच्चों का जिन्होंने अपनी ज़ाती मोहब्बत और दिल की गहराइयों से शहीद आसिफ बागी के साथ जो चाहत का इजहार किया है। मेरे पास अल्फाज नहीं कि इनको मैं किस किस्म का खराज तहसीन पेश करूँ। इसके साथ साथ जो मेरे इस एलियान नोतिया जदीद और इस दरबान के पीछे मेरी माओ बहनों का और ख़ास कर इन बुजुर्गों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें मौका दिया। और शहीद की जोजा के बारे में मैं उसके बारे में कुछ ऐसे अहम इंकशाफात करूँगा कि इंशाअल्लाह रहमान मुस्तकबिल में जब आप 8 जनवरी को जब वोट के लिए जाएंगे तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट टोकरी पे स्टैम्प करेंगे। उसके मैं अपने ख्यालात और एहसासात और जज्बात का इजहार अपने शहीद भाई के चंद अशार से करूँगा कि कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक नाबला मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जन अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश क्योंकि मैं ज़हर हाला हल को कभी कह न सका कन और दुनिया में कतील उससे मुनाफिक कोई नहीं जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। देते हैं उजाले मेरी सजदों की गवाही मैं छुप के अंधेरों में इबादत नहीं करता। मेरे भाइयों और खास कर मेरे जवान बच्चों, ये फूल जैसे बच्चे मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब 2005 का इलेक्शन था तो ठीक इसी तरह आसिफ बागी अपने ख्यालात का इजहार करता था और ये बच्चे उसको अपना आइडियल समझते थे। बदकिस्मती ये कि उसके साथ उसकी जिंदगी ने वफा नहीं की, लेकिन उसने जाते जाते भी अपने इन बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। और उसकी मिसालें मैं चंद आपको इस तरह दूंगा कि शहीद आसिफ बागी पार्क, इसके बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वो पार्क है कि जब मुझे याद पड़ता है कि नेमत खान को आसिफ बागी 27 जनवरी की शाम को फोन करता है कि नेमत खान अनकरीम मलक साहब इस नोतिया में होगा और ये गांव ये जो गायों का रेवड़ है ये खत्म होगा मलक साहब की मौजूदगी में और इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पर पार्क होगा। लेकिन बदकिस्मत ये कि 8:35 जो धमाका होता है उसमें शहीद आसिफ खान बागी नहीं रहता, लेकिन उसके खून की गिरने की जो खुशबू होती है, उसकी महक होती है, वो ऐवान सदर तक जाती है और उस ऐवान सदर की उस दर दीवार को हिला देती है। और वो शेख रशीद जो फेडरल मिनिस्टर रेलवे है वो दूसरे दिन ऐलान करता है कि 70 लाख रुपए इस पार के लिए उसने मुख्तस किए और उसी रेलवे का
सेक्रेटरी शकील कुरैशी साहब उस जमीन का ऐलान करता है जो 21 कनाल की अराजी है, उसकी इस वक्त कीमत 60 करोड़ रुपए है। इसी तरह आसिफ बागी ने FAF डिग्री कॉलेज भी बनाया था। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि आपको पता नहीं है कि जब गवर्नर सरहद आया था नोथिया में तो आसिफ बागी ने पाँव में उसकी चप्पल थी, वो दौड़ता हुआ गया और गवर्नर इफ्तिखार को कहता है अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, मेरा नाम आसिफ बागी है। और गवर्नर साहब कहता है कि आपकी तारीफ, तो उसने कहा आप हाकिम है और मैं महकूम, हाकिम और महकूम का रिश्ता बाप बेटे की तरह होता है। गवर्नर साहब ने कहा कि बागी को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो आसिफ बागी ने कहा कि मैंने माशरे की उस इस्तेसाली ताकतों के खिलाफ बगावत की है जिन्होंने बेवाओं का माल खाया है, जिन्होंने यतीमों का माल खाया है, जिन्होंने औकाफों की जमीन खाई है, मैंने उसके खिलाफ अपने इस इलाके में बगावत की है। तो आसिफ बागी को कहता है कि जी 16 साल पहले जनरल जिया साहब इसी नोतिया फाटक पे आया था और एक शरबत बेचने वाला हमारे नोतिया जदीद का है, रहमत खान उसका नाम है, और उसने जनरल जिया साहब को कहा था कि मुझे हज पर भेजो। तो गवर्नर साहब ने कहा कि आसिफ बागी तुम भी हज पर जाना चाहते हो? तो आसिफ बागी ने कहा कि मेरा हज ये है कि मेरे इलाके में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जिसमें 3 बंदों का स्टाफ है। इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मेरी बहनों के लिए एक कॉलेज होना चाहिए। मेरे इस इलाके में ट्यूबवेल नहीं है, मेरे इस इलाके में रोड टूटे हुए हैं, मेरे इस इलाके में नकासी का आपका बहुत बड़ा मसला है, इसी तरह पशबंदियां रहती हैं, इसी तरह ट्रांसफार्मर के मसले हैं। अगर गवर्नर साहब आप ये कर देंगे तो ये मेरा हज है, ये उस शहीद के गुफ्त थे। इसी तरह आसिफ बागी ने हर प्लेटफॉर्म पे इज्तिमाइयत को फोके दी और उसकी जीती जागती मिसाल ये है कि 20 दिसंबर 2006 को यतीम खाना आसिफ बागी उसकी बुनियाद रखता है। शाजियत अहमद और डिस्ट्रिक्ट नाजिम आला और नायब नाजिम नेमत खान की बदौलत और बेगम गवर्नर सरहद की बदौलत वो यतीम खाना 36 बच्चों का आसिफ बागी लेके आया और उसने अपनी जिंदगी में यतीमों के सर पर हाथ रखे। बदकिस्मत ये है कि उसके साथ जिंदगी ने वफा नहीं की। ठीक 1 महीने बाद शहीद आसिफ बागी खुद शहीद हो गया और आज उसके बच्चे यतीम हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह उसने अपनी जिंदगी में उन यतीम बच्चों के सर पर हाथ रख के रखा, उम्मीद करता हूँ कि ये वो आप लोग होंगे, उन यतीमों के ऊपर आप भी हाथ रखोगे और 8 तारीख को टोकरी के निशान पे आपकी स्टैंप होगी। और इंशाअल्लाह रहमान कहते हैं, कुरान करीम में कहता है, कुरान करीम में जिक्र है कि शहीद मरता नहीं है। आपके 8 तारीख के वोट से 9 तारीख का जो तलुए आफ्ताब होगा इंशाअल्लाह रहमान वो ये पूरे पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को साबित करेगा कि शहीद का खून जब गिरता है वो रंग लेके आता है और शहीद हमेशा जिंदा रहता है, वो आपके वोट की वजह से जिंदा रहेगा। मैं हमारे पास कोई बड़े बड़े मंशूर नहीं है। मुझे पता है कि मेरे मुकाबले में बहुत बड़े सियासी बम्बार खड़े हैं, लेकिन मुझे इससे कोई परवाह नहीं। मेरे पास ऐसे नौजवान हैं, ऐसी बड़ी ताकत है जिनके दिल भी लरसते हैं, जिनकी आंखें भी नम होती हैं शहीद आसिफ बागी के लिए। उस आंसुओं से, उसके समंदर से इंशाअल्लाह रहमान हम 8 तारीख की शाम को हम उनको बहा के साथ ले जाएंगे और इस टोकरी में हम फूलों की भरमार लेके आएंगे। इस टोकरे से हम हर गन उठा के ले जाएंगे। मैं जिस तरह मैं आपको कहता हूं और मेरे शहीद भाई के भी ये गुफ्ता कि हम इज्तिमाइयत को फोके देते हैं। हमारे पास बड़े बड़े मंशूर नहीं है, बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं है और बड़े बुलंदोबांग दावे नहीं है कि मैं आपको कहीं नौकर कर दूंगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा। ये मेरा नंबर है। बहुत से लोगों ने जाली नंबर लिए कि आपको जब भी जरूरत हो तो आप मुझे इस नंबर पर रब्ता करें, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद वो मोबाइल से चिप नालियों में फेंक देगा और आपकी सुनवाई नहीं होगी। आपकी सुनवाई इस तरह भी नहीं होगी। अगर आपने जिसको वोट दिया या तो आप इस्लामाबाद में उनको ढूंढोगे या लाहौर में ढूंढोगे या उनके मोबाइल बंद होंगे या वो हुजरे में मौजूद होगा, वो खुद बड़े लोगों के साथ बैठा होगा या आपके वोटों के ऊपर वो सौदे कर रहा होगा, अपने बैंक बैलेंस भर रहा होगा और जब इख्तिदार उसका खत्म होगा तो आपकी दहलीज पर आकर एक लीफलेट लगाएगा कि मैंने ये तरक्याती काम किए हैं। मैं उन सबसे पूछता हूँ कि जो तुमने तरक्याती काम किए हैं उसकी बुनियाद कितनी लंबी थी, उसकी पायदारी कितनी तक थी, उसमें तो कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं थी। हमेशा आसिफ बागी ने फंडामेंटल राइट्स की बात की है, हम आपके हकूक की बात करते हैं। तो इसी बिना पे हमारी सोच जो है, हमारे पास जो मंशूर है, मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता, मैं आपको रोजगार नहीं दे सकता, मैं आपके लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ये कर सकता हूँ कि आपके लिए यहाँ एक यूटिलिटी स्टोर हो जिससे आपको बाजार में 460 470 की जो बोरी मिलती है और हजारों कतार आप उसके लिए पैसे भी देते हैं, आपको नहीं मिलती। लेकिन इंशाअल्लाह रहमान इस नौते में अगर आपके पास एक यूटिलिटी स्टोर हो तो कम से कम ये गरीब लोग 210 रुपए की बोरी पे तो
वो 210 रुपए की बोरी तो आपको मैसर होगी। इसी तरह मेरे इस इलाके में डिस्पेंसरी नहीं है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, कमर्शियल हॉस्पिटल नहीं है, हमें कंटोनमेंट बोर्ड जाना पड़ता है, वहाँ पे हमें पर्ची बनानी पड़ती है, और जब हम शनाख्ती कार्ड आगे रखते हैं तो तुम नोतिया के हो, तुम जाओ। यही मसले हैं हमारे पास। हमारे ज्यादातर ऐसे भाई हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए मैं उनको रोजगार तो नहीं दे सकता, लेकिन उनके लिए टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो बना सकता हूँ। यही ऐसी चीजें हैं जो इज्तिमाइयत को मौके देती है। बहुत से ऐसे हमारे गरीब भाई हैं, बहुत सी हमारी माई बहनें कुछ करना चाहती हैं। स्किल डेवलपमेंट सेंटर में लाना चाहता हूँ, वोकेशनल सेंटर जिसको दस्तकारी सेंटर कहते हैं। इन चीजों की अशद जरूरत है। गलियां नालियां रोड बनते रहते हैं, बहुत से लोग आके तारकोल लगा के चले जाते हैं और कहते हैं मैंने तरक्याती काम किया। लेकिन मैं हर प्लेटफॉर्म पे हर जैसे मैंने ये कहा, अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैंने आपके लिए गलियां बनाई है, अगर कोई शख्स ये कहता है मैंने आपके लिए रोड बनाए, और अगर शख्स को ये कहता है कि मैंने आपके लिए ट्रांसफार्मर मंजूर किया, तो उसने कोई अपनी पॉकेट से लेके नहीं आया। ये वो आपके वोट हैं, ये वो आपकी ताकत है, ये वो आपका वो पैसा है जो आपने लाइनों में लंबी लंबी कतार के गर्मियों में सख्त तपती हुई धूपों में आपने जाके जो बैंक की लंबी कतारों में खड़े होके वो जो आपने जुर्मानों के साथ बिल जमा किए, ये वो पैसा है। उस पैसे पे आके गवर्नमेंट के खजानों में जमा हुआ है, वो पैसा आपके ऊपर लग रहा है। और अगर कोई ये कहता है कि काम मैंने किया तो सरासर झूठ है, ये सब धोखा है। आप अपने आप को पहचानो मेरे भाइयों, ये ना हो कि फिर वापस आप तारीकी की तरफ चले जाओ। अगर आपने किसी एक ऐसी पार्टी को वोट तो दे दिया और उसकी हुकूमत फेडरल में नहीं आई, तो कल को आप 5 साल तक वो ये कहता रहेगा जमा हुकूमत रहना वो लिहाजा तो कोर के कहना। और अगर कोई दूसरी पार्टी को आपने वोट दे दिया तो वो भी ये कहेगा जमा रहना हो तकोर के कहना। यही हालात आपके साथ होंगे तो क्या आप 5 साल तक फिर इन गंदी नालियों में सड़ते गलते रहोगे? क्या आपकी यहाँ की जो 75% आबादी जो हेपेटाइटिस बी का शिकार रही है, क्या आप उसी शिकार में रहोगे? क्या ये जो बाहर जो लेबोरेटरी खुली है ये आपको ब्लैकमेल करती रहेंगी, आपको खाती रहेंगी? क्या आप इन्हीं लोगों पे कटते मरते रहोगे? सोचो मेरे भाई, ये वक्त का तकाजा है। 8 जो जनवरी है ये कोई बड़ी बात नहीं है, दिन भी गुजर जाएगा। लेकिन मसला ये है कि आपने अगर किसी गलत आदमी को वोट दे दिया तो 8 जनवरी ऐसी 10 8 जनवरी आती रहेंगी और आपकी ये जो बच्चे हैं इसी तरह गंदी नालियों में खेलते कूदते रहेंगे। आसिफ बागी ने तो एक पार्क लिया, क्या और आप में से आसिफ बागी पैदा नहीं हो सकते? क्या आप में और सफदर बागी नहीं पैदा हो सकते? क्या आप में और ऐसे शहीद और ऐसे नहीं पैदा हो सकते? क्या हमने इस खानदान ने ठेका लिया है शहादत खाने का और नोटे को संवारने का? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हर उस घर में आसिफ बागी पैदा हो, उस जैसी सोच पैदा हो। ये वो आसिफ बागी है जो गर्मियों में कमीज उतार के स्कूलों में रंग करता था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि आसिफ बागी जब शहीद हुआ तो मैं चौथे दिन उसके घर में दाखिल होता हूँ तो उसके घर में सारी जो चूने हैं वो टपक रहा था, उसकी दीवारें काली थी। लेकिन जब मैंने डिस्पेंसरी की तरफ निगाह बढ़ाई तो मेरे नए शहीद आसिफ बागी ने यही नायब नाजिम नेमत खान से 500 रुपए कर्ज लिए और नेमत खान को कहा कि मेरी डिस्पेंसरी के लिए चूने के पैसे दो। नेमत खान ने उसको 1000 डिस्पेंसरी के लिए दिए। वो डिस्पेंसरी आज भी रोशन ताबीर की तरह है। आसिफ बागी की सोच पॉजिटिव थी, वो कभी नेगेटिव नहीं सोचता था। ये वही आसिफ बागी है जो हरम शरीफ में बैठ के नोतिया के पार की दुआ करता है। ये वही आसिफ बागी है कि हरम शरीफ में बैठ के खिलाफ काबा के ऊपर दरखास्त लिखता है कि मेरे नोतिया में खुशहाली और तरक्याती काम हो। ये वही आसिफ बागी है जिसने हरम में अपनी जिंदगी का दुआ नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ नोतिया की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की थी। तो आप मैं नहीं समझता कि आसिफ बागी को आप इतनी जल्दी भूल जाओगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे 8 जनवरी को नाउमीद नहीं करोगे, क्योंकि ये मेरी जाती जंग नहीं है, ये जंग शहीद की जंग है। और इस जंग में मैं आप सबसे कहता हूँ शिरकत करो। मुझे वैसे मुजाहिद नहीं चाहिए कि जो कुफार के मुकाबले में जाके मुसलमानों के साथ लड़े। मुझे ऐसे गाजी और मुजाहिद चाहिए जो कि उठ खड़े हो, शहीद के खून के ऊपर खड़े हो और शहीद के मिशन को लेकर आगे चले। और यही तकाजा इस वक्त का तकाजा है। मेरी आपसे बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता क्योंकि नमाज का वक्त तो हुआ चाहता है, लेकिन जाते जाते मैं आपको बड़े अहम तरीके से एक बात और कहूंगा कि जो टोकरी निशान हमारी है ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का पेशा था। और आसिफ बागी ने कहा था कि इस टोकरी में मैं नोतिया से सारा गंद ले जाऊंगा और फूल लेके आऊंगा। और वही मिसाल है, उस एक फूल की मिसाल मैं यही दूंगा कि मलिक अशरफ जिसने शहीद आसिफ बागी के हक में दस्तबरदार हुआ। हमें ऐसे नौजवानों की जरूरत है, हमें ऐसे सपूतों की जरूरत है जिसने अपने जमीर में झांका और देखा कि वाकई मैं इस जगह पे गलत हूँ। मेरे सामने MPA सूबाई असेंबली जरूरी नहीं है, मेरे सामने शहीद का खून जरूरी है। तो उसकी जीती जागती मिसाल ये मलिक अशरफ अवान है। ये साबिका दौर में काउंसलर भी रह चुके हैं। अगर कोई ये समझता है
अगर कोई ये समझता है कि मलिक अशरफ की कोई हैसियत नहीं है तो इस तरह सर झूठ है। अगर इसका 100 या 150 वोट भी मुझे पड़ा तो ये मेरे लिए कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और उससे भी जो बड़ी बात है, इस मलिक अशरफ ने नाखून से लेकर सर के बाल तक शहीद के हवाले सुपुर्द कर दिए। हमें ऐसे नौजवानों की जरूरत है। मैंने शहीद फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम बनाई है, आप उसमें बढ़कर शिरकत करें। हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ना हम कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं। हर वो शख्स मेरा इस फाउंडेशन का मेंबर होगा। और मैं चाहता हूँ कि हम आने वाले वक्तों में, मैं सूबाई कौमी के लिए नहीं खड़ा हूँ, मेरे गरीब लोगों में से लोग आए जिनके बारे में जिनको पता हो कि इनकी सोच क्या है, ये गरीबों के मसाइल क्या है। आप ऐसे बड़े बड़े लोगों को वोट तो दे देंगे तो या क्या आप उनके पीछे होटलों में घूमोगे या बड़े बड़े हुजरों में उनके पीछे ढूंढोगे, जो आपको मिलेंगे नहीं। और जब आप उनके हुजरों में जाओगे तो उसमें फिर क्या होगा, एक जमीन पे बैठा होगा गरीब आदमी, दरमियाना आदमी थोड़ा सा चारपाई के ऊपर बैठा होगा, थोड़ा गाड़ी वाला बंदा होगा बैठक में होगा, और अगर बहुत ही ग्रेट आदमी होगा तो उसके लिए अलग रंग किस्म के सहूलतें उसके हुजरे में मुयसर होंगी। हमारे हुजरे में सबके लिए इक्वल एंड बैलेंस सिस्टम है, हम किसी में तजाद नहीं करते। यही सोच मेरे शहीद आसिफ बागी की थी। जाते जाते मैं ये नज़म दोहराऊंगा कि बागी कहता था कि मैं बागी हूँ, मैं बागी